Hello students, welcome back to your physics class. I hope you all are good. In the last video you learned about the relationship of density with mass and volume. Our today's topic is calculation of speed. So firstly we will see what is speed. Speed is the distance traveled or distance covered by an object per unit time. Let's take an example. For example, a person starts from point A and he covers a distance of 30 km up to point B. That means this distance is 30 km and this distance is covered by the person in 1 hour. So we can say that speed is defined as the distance of 30 km covered by the person in a time of 1 hour. This is the speed of the person. और हम ये कह सकते हैं कि एक गिवन डिस्टेंस को इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है पर्सन, दैट इज नोन एज स्पीड. या फिर एक गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई पर्सन और कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, दैट इज नोन एज स्पीड. और स्पीड टेल्स अस दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. स्पीड हमें ये भी बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहे हैं. जैसे कि हम एक सेकेंड पर्सन लेते हैं जो इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर को हाफ आवर में कवर कर रहा है. अब ये जो फर्स्ट पर्सन है उसने इस डिस्टेंस को 1 आवर में कवर किया और जो सेकेंड पर्सन है इसी डिस्टेंस को हाफ आवर में कवर कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली स्पीड सेकेंड पर्सन की ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो सेकेंड पर्सन है इस सेम डिस्टेंस को हाफ आवर में कवर कर रहा है और ये जो फर्स्ट पर्सन है इस डिस्टेंस को 1 आवर में कवर कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उतनी स्पीड कम होगी, और अगर टाइम कम लगेगा तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी. दैट मीन्स मोर द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, lesser is the speed, and lesser the time taken by the person to cover the same distance, then more will be the speed. So this is the concept of speed. Further we can elaborate it by taking an example. For example, if we say that an object is moving at a speed of 50 km per hour, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है, मतलब वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 घंटे में. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन अ टाइम ऑफ 1 आवर. तो वो 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीड का, ये सिर्फ यही बताता है हमें कि एक गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पीड. सो नेक्स्ट इज, दिस इज द फॉर्मूला स्पीड. स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस ओवर टाइम. Units of speed. The SI unit of speed is meter per second. As we know, the SI unit of distance is meter and the SI unit of time is second. So the SI unit of speed is meter per second. It can be written as meter per second. And CGS unit of speed is centimeter per second. We have just to replace the meter by centimeter. So the CGS unit, we know the distance, CGS units is centimeter and that of time is second, so the CGS unit of speed is centimeter per second. And there is another one unit also, that is kilometer per hour. Kilometer per hour is used when we take longer distances for longer periods of time. For example, when we cover long distances on our bike, on our car, then the speedometers or the odometers of the vehicles display the distances or the speeds of the objects of that vehicle in kilometer per hours. So the kilometer per hour is the unit taken for longer distances and for longer periods of time. Another thing is also there, that speed is a scalar quantity. Physical quantities are of two types. First is scalar quantities and second are vector quantities. What are scalar quantities? Scalar quantities are those which can be described only by their magnitude. Magnitude means value, जिनको हम उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वी डोंट नीड द डायरेक्शन
टू मेंशन दैट क्वांटिटी, और उनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती है. बट द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ही जरूरत होती है. उसमें डायरेक्शन को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है. वी कैन टेक एग्जाम्पल. For example, mass. Mass is a scalar quantity. How it is a scalar quantity? Because we can measure mass and we can just write that the mass of this object is 15 kg and there is no any direction of mass. Mass की तो कोई direction नहीं होती है. So that is a scalar quantity. But अगर हम बात करें, if we talk about force, force is a vector quantity. How force is a vector quantity? Force, we know that it is push or pull applied on the objects. For example, I am pushing this pen. I am pushing this pen in this direction. That means I am applying force in this pen in this direction. तो ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स आपको पता है कि इसके जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन होते हैं. मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मैं 1 न्यूटन का जो फोर्स है इस पे लगा रही हूँ. तो जो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये बताना है कि मैं फोर्स लगा रही हूँ तो मैं सिंपली ये नहीं कहूंगी कि मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ. मैं बोलूंगी कि मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ इन दिस डायरेक्शन. तो मुझे डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी. ये तो हमें पता होना चाहिए कि किस फोर्स तो इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है. तो हमें फोर्स के साथ उसकी मैग्नीट्यूड, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है उसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हमें उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. सो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. तो ये जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अब तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है. बिकॉज स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट यू ऑल नो. डिस्टेंस इज द जस्ट द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. डिस्टेंस क्या है कि कितनी डिस्टेंस कवर, कितना पाथ कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने. बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये जो डिस्टेंस है ये भी स्केलर क्वांटिटी है. टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. सो स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड जो है इसका डिवीजन है डिस्टेंस और टाइम का, तो ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट डोंट हैव एनी डायरेक्शन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड. नेक्स्ट इज in every vehicle there is a speedometer console. Speedometer console means there is a speedometer and odometer to display the instantaneous speed and the distance traveled by the vehicle. मतलब दो इसमें मीटर्स लगे होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर. आपने देखा ही होगा. तो जो स्पीडोमीटर है वो डिस्प्ले करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, और जो ओडोमीटर है इट डिस्प्लेज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल. सो व्हाट इज स्पीडोमीटर? इट इज द डिवाइस दैट इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल. जो इंस्टेंटेनियस है इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वर्ड मीन्स, इंस्टेंटेनियस मीन्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. इंस्टेंट मीन्स टाइम, एक खास पल पे या एक खास टाइम पे जो स्पीड होगी व्हीकल की वो जो इंडिकेट करता है स्पीडोमीटर. और वो जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है व्हीकल की उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो स्पीडोमीटर इज द डिवाइस दैट इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल. Next is the odometer. Odometer is that device which displays the distance traveled by the vehicle. कितनी distance travel कर चुका है vehicle, कितनी distance cover कर ली है, that is displayed by the odometer. So next is the conversion of units between meter per second and kilometer per hour. That means what is the relationship between kilometer per hour and meter per second? As we know, meter per second is the SI unit and kilometer per hour is the another unit that is used for longer distances and for longer periods of time. So 1 kilometer per hour can be written as 1 kilometer divided by 1 hour. As we know, 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 second. एक hour में 3600 seconds होते हैं because 1 hour is equal to 60 into 60 seconds, so it is equal to 3600 seconds. So जब हम इनकी cancellation करेंगे, after calculating this one we will get 5/18 meter per second. These zeros will cut down
और ये जो है 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो 1 किलोमीटर पर आ रहा है इट इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्वांटिटी को जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे। देयर आर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कन्वर्शंस। इट मीन्स कि अगर हमें किसी क्वांटिटी को, मान लीजिए आपको कोई क्वांटिटी है जहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और अगर आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, देन यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी विद 5/18 एंड देन यू विल गेट दैट क्वांटिटी इन मीटर पर सेकंड। सो नेक्स्ट इज द कन्वर्शन, रिवर्स कन्वर्शन, कि अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो जो ये जो 1000 मीटर्स हैं, ये जो 1000 दूसरी साइड ट्रांसपोज हो जाएगा और 1 मीटर की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 1/1000 किलोमीटर एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। यू नो ऑल दैट। सो 1 मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1 मीटर ओवर 1 सेकेंड। तो 1 मीटर की जो वैल्यू है ये वाली आ जाएगी आपके पास, और जो 1 सेकेंड की वैल्यू है ये वाली आ जाएगी। तो दिस इज डिवीजन ओवर डिवीजन। सो ये जो 3600 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड 1000 विल कम इन द डिनोमिनेटर। सो आफ्टर cutting you will get 18/5, just reverse of this 18/5 kilometer per hour. That means 1 meter per second is equal to 18/5 kilometer per hour. So this is the conversion from kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour. So अगर हमें किसी क्वांटिटी को, क्वांटिटी मीन्स कि अगर स्पीड आपको दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकेंड में है और हमें इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, हम उस क्वांटिटी को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 के साथ एंड वी विल गेट दैट क्वांटिटी इन किलोमीटर पर आवर। सो कन्वर्शंस वी हैव डन and there are some numericals based on these conversions. First numerical is that the distance between two stations is 192 किलोमीटर। दो स्टेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 192 किलोमीटर। एक ट्रेन टेक्स अबाउट 3 hours टू कवर दिस डिस्टेंस। एक ट्रेन है जो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे लेती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एज वी नो। By just putting the values we will get the speed of the train. हम क्या इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्टेंस हमें पता है कितनी है 192 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना ले रही है ट्रेन, दैट इज 3 hours। तो ये जो कटिंग के बाद 364 इज इक्वल टू 192, तो जो आपका आंसर है वो 64 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यूनिट्स यू हैव टू मेंशन विद द आंसर, दीज आर मस्ट। किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट, ए बाइक ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। उस कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसने, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो इतनी स्पीड पे जा रही है। वट वुड बी द टाइम टेकन बाय द बाइक टू कंप्लीट द जर्नी। हाँ जी, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। Now, two of the things from distance, speed and time are given. Speed भी दी हुई है और distance भी हमारे पास है, तो हम time निकाल सकते हैं। As we know, we can transpose this to that side. Time can be written as time is equal to speed जो है denominator में आ जाके time is equal to distance over time. So time is equal to distance over speed. Distance is 120 kilometer and speed is 40 kilometer per hour. These kilometers will cancel out and 40 3s are 120 and it will equal to 3 hour. ये जो hour है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, so it will be equal to 3 hour। मतलब 3 hours लगेंगे बाइक को 120 किलोमीटर कवर करने के लिए when it is going with a speed of 40 kilometer per hour. Next is a distance of 6 kilometer is covered by a two-wheeler vehicle in 8 minutes. What would be the speed of the car? अब जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर है और उसको वो जो स्पीड डिस्टेंस है वो इतनी टाइम में कवर करनी है, तो जो स्पीड होगी वो कार की कितनी होगी। सो वी विल सी दैट डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है
6 kilometer, and जो time है that is in minutes. Then now we have to convert it into hours. As we know 1 hour is equal to 60 minute, और अगर हम 1 minute की वैल्यू निकालेंगे that it will be equal to 1 over 60 hours. So it can be written as 8 over 60 hours. As we know speed is equal to distance over time. Speed is given 6 and time taken we have converted it into hours. So it is equal to 8 over 60. Now it will go upward. 6 into 60 over 8 numerator में आ जाएगा. So after cutting we will get 45 kilometer per hour. As we know 4 2s are 8 and 3 2s are 6, and after cancellation we will get the answer 45 kilometer per hour. So these are the numericals based on speed, formula of speed, and you can solve this. I hope you will understand this topic. Thank you.